الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. پہلا روزہ منگل کو ہوگا، کہیں بھی رمضان کا چاند نظر نہ آیا. مرکزی رویت ہلال کمیٹی ملک بھر سے شہادتوں کا انتظار کرتی رہ گئی. مفتی منیب الرحمان نے کر دیا اعلان، سعودی عرب، ایران اور خلیجی ریاستوں میں پہلی نماز تراویح کی تیاری. کل پہلا روزہ ہوگا. حکومت کا 10 سال کے لیے قمری کیلنڈر جاری کرنے کا اعلان. ایک ہی دن روزہ اور عید کے لیے ماہرین پر مشتمل 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی. ملک چلانے کا فیصلہ مولویوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا. فواد چودھری کا ٹویٹ. سہاوا میں کہا نواز شریف جیل جا رہا ہے، شہباز شریف بھاگ گیا، یہ عمران خان کی کوششوں کا نتیجہ ہے. وزیراعظم وزراء کو تاریخ مسخ نہ کرنے کا پابند کریں. علماء نے جب پاکستان کی حمایت کی اس وقت فواد چودھری کا وجود بھی نہ تھا. افسوس نصاب میں پاکستان کی تاریخ شامل نہیں. مفتی منیب الرحمان کا وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کے بیان پر رد عمل. اپوزیشن جماعتوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا. شہباز شریف، بلاول بھٹو اور دیگر رہنماؤں کا شدید رد عمل. سراج الحق نے کہا مہنگائی کا سونامی سب کچھ بہا لے جائے گا، ایسا نہ ہو لوگ سڑکوں پر آ جائیں. فردوس عاشق اوان بولی عالمی سطح پر نرخ بڑھنے پر قیمتیں بڑھانا پڑیں. پاکستان جب ٹوٹا، جب ہمارے سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تو وہ اس لیے تھا کہ پاکستان کا جب نظریہ پیچھے چلا گیا، فوج ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی، ملک کو اس کی عوام اکٹھا رکھتی ہے. 1971 میں نظریہ کمزور ہوا تو ملک ٹوٹ گیا. فاٹا بلوچستان اور اندرون سندھ میں لوگوں کی حالت بہت خراب ہے. یہ وہ پاکستان نہیں جو بنایا گیا تھا. وزیر اعظم کا سہاوا میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے منسوب القادر یونیورسٹی کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب. عمران خان سے افغان صدر کا رابطہ، دورہ پاکستان کی دعوت. IMF کے عہدیدار رضا باقر گورنر اسٹیٹ بینک تعینات. نوٹیفیکیشن کے بعد عہدے کا چارج سنبھال لیا. مریم اورنگزیب کہتی ہیں رضا باقر ملکوں کو قرضوں کی غلامی میں رکھنے کی مہارت رکھتے ہیں. ترجمان بلاول بولے حکومت نے معیشت پر براہ راست IMF کا پٹھا بٹھا دیا. رضا باقر پاکستان کی خدمت کرنے آئے. فردوس عاشق نے تنقید مسترد کر دی. مریم نواز کو پارٹی کی نائب صدر بنانا سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی ہے. شہباز شریف کی صحت پارٹی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل نہیں تو قائد حزب اختلاف کا عہدہ چھوڑ دیں. شاہ محمود قریشی نے کہا تیل قیمتوں میں اضافہ خسارے سے بچنے کے لیے کیا. IMF پر تانے وہ دے رہے ہیں جو خود IMF کے پاس گئے. جیل جانے سے پہلے نواز شریف کی داتا دربار پر حاضری. سابق وزیر اعظم نے فاتحہ خوانی کی اور کچھ وقت گزارا. العزیزیہ ریفرنس کے سزا یافتہ نواز شریف کو 7 مئی کو جیل منتقل کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے ضمانت میں توسیع اور بیرون ملک علاج کی درخواست مسترد کر دی. اسد عمر کو IMF کے کہنے پر ہٹایا گیا. حکومت نے بجٹ سے پہلے ہی تباہی مچا دی. کچھ لوگ 71 جیسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں. آج تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، کل یہ نہیں ہوگا. خورشید شاہ نے PTM سے پوچھے گئے سوالات کی تائید کر دی. بولے پاکستان ہم سب کا ہے، فوج بھی ملک کی حفاظت کے لیے ہے. پنجاب کا پرانا بلدیاتی نظام ختم، نیا قانون نافذ.
कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज मिल गया। लाहौर का चार्ज कमिश्नर डॉक्टर मुस्तफा पराचा के सपुर्द। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का कहना है तब्दीली पर मुअस्सर अमल दरामद के लिए एक काबीना कमेटी बना दी। मौजूदा हुकूमत तो इस मौक़िफ़ से हुकूमत में आई थी, वोट इस बुनियाद पे लिए थे कि हम ये निज़ाम तब्दील करेंगे। कर्जा लेने में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से भी आगे निकल गए। इनमें ये भी सियासी जुर्रत नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन नए सिरे से कराए जाए। पीटीआई हुकूमत ने कर्जा लेने में नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। मुल्क को बंद गली में ले जाया जा रहा है। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने पंजाब के नए बल्दियाती निजाम को गैर आईनी करार दे दिया। बोले हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं कि बल्दियाती इंतखाबात नए सिरे से कराए। भारत खित्ते के अमन को तबाह करने के दर पे। कंट्रोल लाइन पर फिर इश्तियाल अंगेजी। तत्तापानी और कोट कोटेरा सेक्टर्स में मुकामी आबादी पर बुज़दिलाना हमला। 35 साला खातून नसरीन और 12 साला जाहिद शहीद। एक खातून शदीद जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग करने वाली कई भारतीय चौकियां उड़ा दी। अटक में सेहत इंसाफ कार्ड्स की तकरीब बदनज़मी का शिकार। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में अमीन असलम और ताहिर सादिक के हामियों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब में कहा पसमानदा इलाकों में तरक्याती काम तेज कर दिए। यास्मीन राशिद बोली आम आदमी की जिंदगी बेहतरीन करेंगे। समंदरी हवाओं ने कराची वालों की सांसें बहाल कर दी। रमजान से पहले आखिरी संडे शहरियों ने डेरे डाले हॉक्स बे पर। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज। जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध में लू के थपेड़े। शिमाली इलाकों में बाज मकामात पर बूंदे पड़ने का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोहावा में अलकादिर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। इमरान खान कहते हैं कि यूनिवर्सिटी से ऐसे स्कॉलर्स निकलेंगे जो दुनिया में इस्लाम मुखालिफ बातों का जवाब देंगे। पाकिस्तान ने इस्लामी फलाही रियासत बनना था, ना हम इस्लामी रहे ना फलाही। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं 23 साल पहले सियासत शुरू की तो इसका मंशूर वही था जो पाकिस्तान के बानियान का था। मैंने जब 23 साल पहले सियासत शुरू की तो हमने अपनी जमात तहरीक इंसाफ का जो हमारा मंशूर था वो वही था जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स यानी कि जो नजरिया पाकिस्तान था कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। वजीर आजम का कहना है कि मदीना की रियासत का निजाम आज हमें यूरोप में नजर आता है। मुल्क टूटा तो गलती हमारी थी, लोगों को इंसाफ नहीं दिया। फाटा, बलोचिस्तान और अंदरूनी सिंध में लोगों की हालत बहुत खराब है। जिन असूलों पे मदीना की रियासत बनी थी आपको यूरोप में ऐसी रियासत नजर आएंगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान भी जब टूटा, जब हमारे से ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो वो इसलिए था कि पाकिस्तान का जब नजरिया पीछे चला गया तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि हम क्यों इस रियासत का हिस्सा रहे। कप्तान ने मजीद कहा कि फैसला किया नौजवानों को आगे लाएंगे, उन्हें क़यादत देंगे। मुआशी बहरान जैसे मसले आते जाते रहते हैं, नजरिए का मसला नहीं होना चाहिए। सोहावा में अलकादिर यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद के मौके पर वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी भी तकरीब में मौजूद थे। अलकादिर यूनिवर्सिटी को गौसुल आजम महबूब सुबहानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब किया गया है। ये मुल्क की पहली मुनफरिद यूनिवर्सिटी होगी जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स को मुकम्मल स्कॉलरशिप देगी। तलबा को फ्री लंच और हॉस्टल की सहूलत भी फराहम की जाएगी।
सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा नज़रे करम खुदा रा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सोहावा में अलकादर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। यूनिवर्सिटी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि यूनिवर्सिटी से ऐसे स्कॉलर्स निकलेंगे जो दुनिया में इस्लाम मुखालिफ बातों का जवाब देंगे। ये मुल्क की पहली मुनफरिद यूनिवर्सिटी होगी जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स को मुकम्मल स्कॉलरशिप देगी। तलबा को फ्री लंच और हॉस्टल की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इंशाल्लाह हम एक ऐसा यहाँ इस्लाम की तालीम लेके आएंगे, ऐसा यहाँ से स्कॉलर्स निकलेंगे कि जब दुनिया में इस्लाम के ऊपर कोई बुरा भला कहता है तो इस मुल्क में स्कॉलर्स होंगे जो दुनिया को जवाब दे सकेंगे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को महबूब सुबहानी गौसुल आज़म के अलकाबात से भी जाना जाता है। आप सिलसिला कादरिया के बानी भी हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शजरा नस्ब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जा मिलता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल की उम्र में तहसील इल्म के लिए बगदाद तशरीफ ले गए। हुसूल इल्म के बाद इराक के जंगलों और सहराओं में 25 साल सख्त इबादत और रियासत की। 1127 में आपने दोबारा बगदाद में सकूनत इख्तियार की और दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू किया। तबलीग इस्लाम के लिए दूर दराज के सफर किए, मुल्तान में भी क़याम पजीर हुए। आपका मज़ार मुबारक इराकी शहर बगदाद में है जो आज भी रूहानियत का मरकज है। आगे बढ़ते हैं और जिक्र वजीर बराए साइंस फवाद चौधरी का, जो कहते हैं शहबाज शरीफ मुल्क से भागा हुआ है। ये इमरान खान की कोशिश का नतीजा है। वो सोहावा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। 30 साल से पाकिस्तान के इक़्तिदार से चिमड़े हुए लोग चूहे की तरह कभी एक बिल में घुसते हैं, कभी दूसरे बिल में घुसते हैं, और हम उन्हें अपने बिलों से निकाल कर पाकिस्तान के लोगों के सामने पेश करते हैं। कभी लंदन जाते हैं, कभी किसी को कहते हैं हमें माफी लेके दे दो, लेकिन इमरान खान का जो वादा था वो हमने पूरा किया। आज नवाज शरीफ अगर जेल जा रहा है, आसिफ जरदारी अगर केस भुगत रहा है, शहबाज शरीफ अगर पाकिस्तान से फरार है, तो ये इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान के लोगों की फतह, वरना ये तो वो बुत थे जिनकी तरफ आंख उठा के देखना मुश्किल था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर्जा लेने में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद, बोले मुल्क को बंद गली में ले जाया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत तो इस मौक़िफ़ से हुकूमत में आई थी, वोट इस बुनियाद पे लिए थे कि हम ये निज़ाम तब्दील करेंगे। कर्जा लेने में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से भी आगे निकल गए। क्या पाकिस्तानी कौम को आपने ये बताया है कि इस वक्त रोजमर्रा के अखराजात पूरा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान 7 अरब रुपया रोजाना कर्जे ले रही है? मौजूदा हुकूमत बल्दियाती इदारों को काम नहीं करने देगी। इनमें ये भी सियासी जुर्रत नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन नए सिरे से कराए जाए। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर बनाने पर एतराज़ कर दिया। जी हाँ, कहते हैं कि ये इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी है। नून लीग फैसले पर नजरे सानी करे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ लोगों को सियासी ओहदों से नाअहल करार दिया गया। मुझे हैरानी हुई जब मैंने लिस्ट का मुताला किया कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को मुस्लिम लीग नून का नायब सदर नामजद किया है। तंजीम नौ में जनाब शहबाज शरीफ साहब की सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो पार्टी की जिम्मेदारियां संभाल सके।
तो सवाल ये उठता है कि अगर उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो पार्टी की जिम्मेदारियां संभाल सकें, तो फिर उनकी सेहत उनको कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की जिम्मेदारियों की इजाज़त कैसे देती है? वज़ीर ख़ारजा की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद आपने सुनी। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात और दड़ेबंदियां खुलकर सामने आ गए। अटक में पीटीआई के 2 ग्रुप आमने सामने आ गए। तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदियां ड्राइंग रूम से निकलकर जलसे के पंडाल तक पहुंच गईं। अटक में इंसाफ सेहत कार्ड की तकरीब में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब मलिक अमीन असलम और मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के हामी आपस में उलझ पड़े। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मौजूदगी में दोनों ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बिखरे कारकुनान के सामने इंतजामिया भी बेबस दिखाई दी, जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी उस्मान बुज़दार खामोश तमाशाई बने रहे। वजीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब भी किया। उनका कहना था सूबे भर में 70 लाख खानदान और 3 करोड़ अफराद इंसाफ सेहत कार्ड से मुस्तफीद होंगे। जो लोग इलाज नहीं करा सकते वो अब इलाज करा सकेंगे। अब आपको बताएं कि नए मुशीर खजाना अपनी नई टीम भी ले आए। डॉक्टर रजा बाकर गवर्नर स्टेट बैंक और अहमद मुश्तबा मेमन की बतौर चेयरमैन FBR तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए गवर्नर स्टेट बैंक ने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए पीटीआई हुकूमत के अहम फैसले। डॉक्टर रजा बाकर गवर्नर स्टेट बैंक और अहमद मुश्तबा मेमन चेयरमैन FBR तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IMF मिस्र मिशन पर तैनात पाकिस्तानी नैयाद डॉक्टर रजा बाकर करेंसी की कद्र में तवाजुन बेहतर बनाने और IMF से कर्जा लेने की शराइत की तकनीकी महारत भी रखते हैं। नए चेयरमैन FBR अहमद मुश्तबा मेमन टैक्स रेट और टैक्स गुजारों की तादाद बढ़ाने के उमूर के माहिर गर्दाने जाते हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात का भी तजुर्बा रखते हैं। इमरान साहब आपने पाकिस्तान में IMF का बाज़ाबता दफ्तर खोल दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्रुरी पर तर्जुमान नून लीग का रद्द अमल। मरियम औरंगजेब बोली इमरान खान ने मुल्क को नई ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। तर्जुमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा बाकर रजा को गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर करके हुकूमत ने मईशत पर बराह रास्त IMF को बिठा दिया। इमरान खान के होते हुए मईशत ठीक नहीं हो सकती। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक कवान ने अपोजिशन की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा आला गैर मुल्की तालीमी इदारों से फारिगुल तहसील डॉक्टर रजा बाकर पाकिस्तान का काबिल फख्र सपूत है, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। लीड्स में ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मरकजी कन्वेंशन की कामयाबी पर इजलास का इनेकाद। मुकर्ररीन का कहना है कि ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बरसर इक़्तिदार आना तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा। आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 27वें मरकजी कन्वेंशन की कामयाबी पर वेस्ट यॉर्कशायर की ब्रांचेस के नौमुंतखब ओहदेदारों ने सदर ब्रेडफोर्ड ब्रांच मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मरकजी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर और साबिक चेयरमैन बावा चौधरी मोहम्मद शरीफ बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। उन्होंने कहा कि ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत की सबसे पुरानी और रियासती सरहदों की मुहाफिज जमात है। तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी के लिए रियासती जमात का बरसर इक़्तिदार आना नागुज़ीर हो चुका है। बाग कन्वेंशन बहुत कामयाब कन्वेंशन है और हम उसको दिल की थागरों से अवाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो बाग का स्टेडियम था इससे पहले कहीं नहीं भरा गया था। पता ये चलता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। वो इक़्तिदार में हों या ना हों, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। इस बात का ये सबूत है कि जो कन्वेंशन इतना कामयाब हुआ है, इसका मतलब है कि रियासती जमात लोगों के दिलों में बसती है।
اس موقع پر صدر ہیلی فیکس برانچ پہلوان مہربان، سیکریٹری جنرل بریڈ فورڈ برانچ چودھری شہزاد اور دیگر افراد نے کہا کہ مسلم کانفرنس نظریہ الحاق پاکستان کے فلسفہ پر عمل پیرا رہتے ہوئے کشمیر کی آزادی کی جنگ جاری رکھے گی۔ جناب، ہم مرکزی کنونشن جو باغ میں منعقد ہوا ہے 30 اپریل، اس پہ کامیاب کنونشن پہ ہم جناب سابق وزیر اعظم جموں و کشمیر سردار عتیق احمد خان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا زبردست کنونشن منعقد کیا اور عوام نے ان پر اپنا بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ جو باغ میں کنونشن ابھی ہوا ہے اس کی جو کامیابی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو سابق وزیر اعظم سردار عتیق صاحب ہیں ان کی مقبولیت کا جو اظہار لوگوں نے کیا ہے وہ اس بات کی یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ وہ ابھی بھی سکسیسفل ہیں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی سکسیسفل ہوں گے۔ مرکزی کنونشن کی کامیابی پر تمام عہدیداران نے مل کر کیک کاٹا اور قائد مسلم لیگ کانفرنس سردار عتیق کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کونسل برمنگھم میں بصارت سے محروم افراد کی امداد کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ بینائی سے محروم ریئل ویژن کے چیئرمین ثاقب جاوید نے ایک ڈاکومنٹری کے ذریعے شرکاء کو بتایا کہ بصارت سے محروم افراد خود کفیل بن سکتے ہیں۔ اس موقع پر شرکاء نے دل کھول کر احتیاط دی ہے۔ عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کونسلیٹ برمنگھم میں ریئل ویژن کے زیر اہتمام آگاہی مہم کے حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ کونسلیٹ آفس کے آڈیٹوریم ہال میں منعقدہ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ تقریب میں ریئل ویژن کی جانب سے خود کفیل بنائے گئے افراد کی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی۔ تاریکیوں کے چھپ جانے کا مژدہ، روشنی، اجالے اور نور کی تعبیر۔ پاکستان کا تاریخی کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنا منفرد مقام رکھتا ہے۔ اسلام آباد میں شب و روز ترقی کی منازل طے کرتا ریئل ویژن ٹرسٹ 2014 میں شروع ہوا۔ 2 سال کی کلیننگ اور اپنے مسائل کے حل کے لیے مختلف اسسٹنٹ ڈیوائسز کا سہارا لیتے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی کونسل جنرل احمد اسماعیل تھے۔ بینائی سے محروم ریئل ویژن کے چیئرمین ثاقب جاوید ایڈوکیٹ نے ادارے کی کاوشوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ بینائی سے محروم ہونے کے سبب انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا دست و بازو بننا ہوگا۔ ہمارا بلائنڈ بندہ ہے، اس کے اندر ایک چھپا ہوا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کو صرف ہم نے نکال کر لانا ہوتا ہے۔ اس چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو نکالنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے اور ہم اسی کے لیے کوشاں ہیں، دن رات اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بلائنڈ ہوں، میں نے وہ تمام مسائل، وہ تمام پرابلم زندگی میں دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ کیا پرابلمز ہوتے ہیں زندگی میں۔ تو اس وجہ سے اس چیز سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار اگر میں ایک اچھی فیملی میں پیدا کیا ہوگا تو میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور جو لوگ کسی کمزور فیملی میں پیدا ہوئے ہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حکومت دیکھیں اپنی توفیق سے تو کچھ کر ہی رہی ہے، لیکن باقی انہیں یہ کرنا چاہیے کہ جو بلائنڈ لوگ ہیں ان کے جو اکوپمنٹس ہیں اسکولوں میں، خاص کر کے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ بہت پرانے ہو چکے ہیں، تو وہ جو ہے نا ان کو اب نیا کرنا چاہیے تاکہ لوگ ہمارے جدید تقاضوں کے مطابق پڑھ سکیں۔ زینب خان، ڈاکٹر نگہت افتخار، ناز جعفری، نازیہ حسین، ڈاکٹر شمس خان، عابد زمان خٹک، پیر محمد طیب الرحمان قادری اور دیگر کا کہنا تھا کہ بینائی سے محروم افراد کو قدرت کاملہ نے بے شمار صلاحیتوں سے نواز رکھا ہوتا ہے۔ معمولی سی تربیت اور سپورٹ نہ صرف انہیں خود کفیل بنا سکتی ہے بلکہ وہ دوسروں کی معاونت بھی کر سکتے ہیں۔ آنکھوں کا جانا کہ اب پہلے سے بہتر دیکھتا ہوں، زمیں کا مال و زر کیا دیکھتا میں، کہاں میں اتنا جھک کر دیکھتا ہوں۔ جی ہاں، جو ثاقب صاحب ہیں واقعی جھک کر دیکھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ان کا ویژن بہت اچھا ہے جو ریئل ویژن کے نام سے ہے، اور وہ بہت ان کی جو کوششیں ہیں وہ قابل تحسین ہیں کہ وہ نابینا بچوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے اندر ہنر پیدا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا کاریہ۔ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ لوگ بصارت سے محروم ہیں، ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک چیز چھینی ہے تو اس کے بدلے ان کو بہت ساری کوالٹیز ملی ہیں۔ اس کی ایگزامپل ثاقب بھائی ہیں۔ Blind man basically has got the strength to develop such a program, and I was
really impressed. And I'm set the example basically of how, even though he was blind, he overcame all the obstacles, yet he achieved so much. And his vision is absolutely amazing, because what he's doing is providing a vision whereby other blind people can also live a highly fulfilled life, a highly sustainable life. जो आँखें हैं वो हमारे अल्लाह ताला के अनमोल दी हुई नेमत है, और जो लोग इस नेमत से महरूम होते हैं बस उन्हीं को इसकी कमी लगती है. तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ हो सके जितना भी हो सके तो इन मासूम बच्चों की मदद करें. पाकिस्तान में जितने भी जो माजूर लोग हैं उनको इतना ध्यान नहीं दिया जाता. तो जो बेड़ा एक ऐसे शख्स ने जो कि ख़ुद भी ब्लाइंड है उसने उठाया है, और जिस कम वक्त में जो तरक्की उसने की है, तो मैं उस पे जितना भी दाद दूं उसको कम है. मुझे वैसे बहुत खुशी हुई कि वो इतने अच्छे कॉज के लिए आज हम सबको इकट्ठा किया गया. हो चुके तो उसको बिल्कुल ही कट ऑफ नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उनको मुआशरे में एक स्टेप वाइज आगे लेके आना चाहिए, ताकि वो भी एक अच्छा मुआशरे का शहरी बन सके. करने का मकसद था वो अवेयरनेस इवेंट के नाम से रखा गया, यानी लोगों को बताना ज़रूरी था कि ये जो साकिब भाई जैसे लोग हैं ये पाकिस्तान में किस तरह काम करें. ये खुद भी ब्लाइंड हैं और ब्लाइंड बच्चों के लिए कितना मतलब अच्छा काम कर रहे हैं जो शायद हम लोग नहीं कर पाते. तो यहाँ पे अवेयरनेस इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए. माशाल्लाह मुझे आज लोगों को देख के बड़ा खुशी हो रही है कि इस वक्त माशाल्लाह इस मोर देन 80-90 पीपल यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उन सब ने देखा और मुझे सब लोगों से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. और इंशाल्लाह ताला हम ऐसे कामों में, अच्छे कामों में जो है ना इन लोगों का साथ देते रहेंगे. आखिर में पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी ने पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआ की. रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से एक तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें मकामी लोगों को पाकिस्तान में सयाहत की दावत दी गई. इस मौके पर सफीर पाकिस्तान ने शुरका को पाकिस्तान के सियाहती मकामात के बारे में आगाह किया. मजीद अहवाल राजा हबीब की इस रिपोर्ट में. सफारत खाना पाकिस्तान बराए फ्रांस ने मुकामी टूर कंपनी के साथ मिलकर यूरोपीय सयाहों के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसका मकसद पाकिस्तान में सियाहत को फरोग देना है. पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने अपने खिताब में तकरीब के शुरका को पाकिस्तान के सियाहती मुकामात की सैर करने की दावत दी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुनफरिद और शानदार सरजमीन हर किस्म के सियाहों के लिए बड़ी दिलचस्प और पुरकशिश है. सफीर पाकिस्तान ने कहा कि सियाहत के शोबे के फरोग के लिए मौजूदा हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इकदामात कर रही है. इन मकासद के लिए सियाहों को जदीद सहूलियात फराहम करना, नई वीजा पॉलिसी का इजरा, हुकूमत की दोस्ताना सियाहती पॉलिसी और आने वाली नस्लों के लिए कुदरती वसाइल को महफूज बनाना शामिल हैं. इस मौका पर आलमी शोहरत याफ्ता एंथ्रोपोलॉजिस्ट और मुहक्किक जॉर्ज रुवेली ने अपने दौरे पाकिस्तान के बारे में तकरीब के शुरका को तफसीली आगाह किया. बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का. आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ. बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तमगा इम्तियाज हासिल करने वाली मारूफ अदाकारा महविश हयात कहती हैं कि इमरान खान उनके पसंदीदा सियासतदान, जबकि आरिफ अलवी की दिल से कदरदान है. अदाकारा लंदन में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी. जी बिल्कुल, हमारे साथ पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा जिन्होंने भी रिसेंटली सदारती अवार्ड भी जो है वो विन किया है, हमारे साथ महविश हयात साहबा मौजूद हैं. इनसे पूछते हैं कि सबसे पहले इनकी क्या फीलिंग है, इतना बड़ा अवार्ड इन्हें मिला है पाकिस्तान से. अस्सलाम वालेकुम. मेरी फ़ीलिंग ऑफ कोर्स बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का भी एक एहसास होता है कि अच्छा अब ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई कंधों पर. बट ऑफ कोर्स इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मुझे 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा गया, वो भी इस ऐसे वक्त पे कि जब रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा भी हो चुका है और सारा कुछ हुआ है. तो जब आपको स्टेट रिकग्नाइजेज योर टैलेंट एंड योर एफर्ट्स, आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग. एंड आई थिंक ये सिर्फ मेरे लिए एक शुरुआत है और आगे भी बहुत काफ़ी फिल्में मशहूर रही, पंजाब नहीं जाऊंगी और आप लोड बेडिंग, एक्टर इन लॉ. पंजाब नहीं जाऊंगी बहुत करीब है मेरे दिल के. वैसे आप पंजाब जाती हैं? बहुत ज़्यादा पंजाब से बहुत प्यार है और सारी ही फिल्में बहुत पसंद है मुझे, मेरे दिल के करीब है, क्योंकि उनके फिल्में मैं हाँ ही तब करती हूँ जब मुझे दिल को लगती हैं. सो ऑफ कोर्स एवरी फिल्म इज़ वेरी स्पेशल, बट हाँ पंजाब नहीं जाऊँगी हैज़ अ लिटिल बिगर चंक ऑफ माई हार्ट. तो गाना भी वैसे गाती हैं थोड़ा बहुत? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं गाऊंगी क्योंकि बहुत शोर है. अच्छा ये बताएं कि जो हमारी आप बता रही हैं कि पाकिस्तान की जो सिनेमा इंडस्ट्री है वो रिवाइव हो रही है,
تو हो चुकी है। तो अब आप समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है? हाँ, बेशक बहुत ज़्यादा टैलेंट आ रहा है, बहुत सारे डायरेक्टर्स आ रहे हैं जो कि पढ़ के और सीख के काम आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अब हमारी इंडस्ट्री में और फिल्म में, स्पेशली फिल्म्स में। सो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक और अब हम फिल्में बना रहे हैं। पहले एक फिल्म बनती थी, फिर 10 फिल्में बनती थी, अब 20 फिल्में बन रही हैं। तो साल की फिल्मों का नंबर बढ़ता जा रहा है, विच मीन्स कि हमारी इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग एंड इंशाल्लाह इट्स ऑन द राइट ट्रैक और दुनिया भर से मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। आपका एक्टिंग में रोल मॉडल कौन है? एक्टिंग में मुझे मेरिल स्ट्रीप बहुत पसंद है। पाकिस्तानी एक्टरों में कोई है आपका? पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में नादिया जमील, आई रियली लव्ड हर एंड आई एम ग्लैड कि वो फिर से वापस आ रही हैं, उनका एक ड्रामा बन रहा है। सो आई एम वेरी बुशरा आपा बहुत अच्छी हैं, सबा हमीद इज़ एक्सीलेंट। अच्छा, जो आपके मैं कहूँगा करोड़ों जो फ़ैन हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपका पसंदीदा पॉलिटिशियन कौन है? इमरान खान ऑफ कोर्स। सदर पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? सदर पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एंड स्पेशली जब मैं उनसे मिली हूँ, जब उन्होंने मुझे अवार्ड दिया तो मैं तो आई वॉज लाइक आई डिडंट इवन हैव एनी वर्ड्स एक्सेप्ट टू से थैंक यू। उन्होंने अच्छा, जो नाकदीन होती हैं, जो तनकीद भी आपको पता है बहुत करते हैं, सोशल मीडिया को थोड़ा सा आपको तनकीद का निशाना बनाया गया है, थोड़ी सी मायूसी हुई कुछ लोगों की? नहीं, बिल्कुल कोई मायूसी नहीं हुई। और देखें, जो भी कामयाबी की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ता है दुनिया भर में बहुत सारे बड़े बड़े नामों के साथ ये हुआ है, होता आया है एंड ये सिर्फ कामयाबी की ही निशानी होती है। कहते हैं ना, तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच महविश, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली मुजालिम कम ना हुए। 3 दिन से जारी बमबारी में शोहदा की तादाद 9 तक पहुंच गई। इसराइली तैयारे आज फिर गजा पट्टी पर मजलूम फलस्तीनियों पर कहर बरसाते रहे। फजाई हमले में हामला खातून समेत 1 साला बच्ची शहीद हो गए, जबकि 70 के करीब लोग जख्मी हैं। 3 दिन से जारी बमबारी में शोहदा की तादाद 9 हो गए, जबकि 3 इसराइली शहरी भी हमास के रॉकेट हमले में मारे गए हैं। इसराइली तैयारों ने 150 के करीब फजाई हमलों और आर्टिलरी शेलिंग के जरिए गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया। इसराइली फौज का दावा है कि हमास और इस्लामी जहाद ब्रिगेड की जानिब से उस पर 400 से जायद रॉकेट बरसाए गए हैं। शाहीन दौरा इंग्लैंड के पहले ही इम्तिहान में नाकाम हो गए। वर्ल्ड कप की तैयारियों के बड़े बड़े दावे पहले असली मुकाबले में हवा हो गए। कार्डिफ में खेले गए वाहिद T20 मैच में इंग्लैंड ने शाहीनों को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। सलीम साबरी, बताइएगा आज के मैच की क्या तफसीलात रहीं, क्या ज़ेरो बम रहे? जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 20 ओवर में 173 रन बनाए, जिसमें बाबर आजम और हारिस सोहेल ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से उनके कप्तान एन मॉर्गन और जोए रूट्स ने जो है वो अच्छी ज़िम्मेदाराना बैटिंग की और आखिरी ओवर में इंग्लैंड ने ये मैच जीत लिया। इंग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड इस ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छा है। उन्होंने इससे पहले 5 मैच खेले, 5 के 5 में उनको फतह हुई। तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आई। इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों से वो बड़े पुरजोश थे कि जिस तरह पाकिस्तान ने टूर का आगाज़ किया 3 मुसलसल विन से, तो आज भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। लेकिन यहाँ पर आखिरी ओवर में एक अच्छे मैच के बाद पाकिस्तान जो है 7 विकेटों से ये मैच हार चुका है। जी, बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में महकमा सियाहत व आसार कदीमा के ज़ेर एहतमाम समर टूरिज्म फेस्टिवल हुआ। फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने किया। पाकिस्तान भर से 600 से जायद नेज़ाबाजों ने शिरकत की। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सज्जाद जराल की रिपोर्ट। मीरपुर आजाद कश्मीर में 2 रोजा समर टूरिज्म फेस्टिवल रौनकें बखेरने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में आजाद कश्मीर और पंजाब के 65 नेजाबाज क्लब शरीक हुए। घुड़सवारों ने महारत दिखाकर दाद वसूल की। विफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीर गंडापुर ने फेस्टिवल के दूसरे रोज शिरकत की। विफाकी वजीर उमूर कश्मीर ने भी नेजाबाजी का मुजाहरा किया। वो नेजाबाजी में कोई नंबर ना हासिल कर सके। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा दौड़े है।
फेस्टिवल के दौरान नेजाबाजों ने खूब महारत दिखाई, कोई टारगेट साथ ले गया तो किसी के हाथ कुछ न लगा। मेला मवेशियों के जरिए भी शहरियों को तफरीह फराहम की गई। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने खिलाड़ियों में इनामात और फेस्टिवल की इंतजामिया में शील्ड्स तकसीम की। लंदन में रंगारंग पाकिस्तान फैशन वीक, पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स की भरपूर पजीराई। मॉडल्स ने रिवायती उरूसी और जदीद फैशन के हसीन इम्तजाज से रैंप पर हुस्न के जलवे बिखेरे। तफसीलात देखिए गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। वस्ती लंदन में रवायत के मुताबिक पाकिस्तान फैशन वीक का 15वां सीजन लाइफस्टाइल जोरों शोर से जारी। पहले रोज में 2 सेशन हुए, जिसमें पाकिस्तान समेत कई मुमालिक के 50 डिजाइनर्स ने हिस्सा लिया। खूबसूरत मॉडल्स ने मशरकी और मगरबी फैशन के हसीन इम्तजाज से रैंप पर वॉक करके फैशन वीक को 4 चांद लगा दिए। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों से ड्रेस डिजाइनर्स और ज्वेलरी डिजाइनर्स ने दुनिया को पाकिस्तान में फैशन के नित नए अंदाजों से मुतारिफ करवाया। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर अदनान अंसारी, हाशमी और हाजरा लाल दीन ने कहा कि पाकिस्तान फैशन वीक को हर साल की तरह इस साल भी बेहद पजीराई हासिल हुई है। पाकिस्तान फैशन की 15 साला तारीख में पहली मर्तबा ख्वाजा सराओं ने भी रंग बिरंगे मलबूसात की नुमाइश की, जिन्हें हाजरीन ने खूब सराहा। बहुत ही अच्छा था, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइनर आए हुए थे और जिनका वो काम जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और बहुत ही अच्छा काफ़ी डिफरेंट और वैरायटी का फैशन शो था। एवरीथिंग वाज वेरी गुड ऑर्गेनाइज्ड, द म्यूज़िक वाज वेरी नाइस, जो उनकी सारी आउटफिट्स थी वो काफ़ी डिफरेंट थे। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया है। There's so much talent with Pakistani fashion designers, and we saw, top models here today with top fashion designers. All the talent was here on the catwalk, and it was a full house. I think we sometimes take it for granted, all the talent that we have in Pakistan, but shows like this, like with the lifestyle show, which is going on for a few days, with Rawayat, they've done a fantastic job. हमारे कलेक्शन का नाम था मूनलाइट ब्लॉसम, एंड ये बेसिकली हमारी इंस्पिरेशन रोकोको डिज़ाइन से शुरू हुई थी, फ्रेंच डिज़ाइन से शुरू हुई थी। तो हमने अपने मोटिव्स उसके हिसाब से इस्तेमाल किए थे, और हमारी जो पूरी मूनलाइट कलेक्शन थी उसमें ज़्यादातर हमने सिल्वर्स का इस्तेमाल किया है, फ्लोरल मोटिव्स थे। आई वांटेड समथिंग कि जैसे डे वेडिंग में भी पहने जा सकें, और उसके साथ हमने फ्लोरल्स इन्फ्यूज़ किए हुए थे। हमने सन ग्लासेस और थोड़ा सा ट्रेंडी लुक की तरफ लेके जाना चाहते कि ज़रूरी नहीं है शादी पे हर वक्त ट्रेडिशनल लुक यूज़ किया जाए। एक इंटरेस्टिंग आइडिया ये भी हो सकता है कि अगर हम कोई डे वेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी ट्रेंडी लुक की तरफ ज़्यादा जाएं। बहुत अच्छा लगा, द कलर्स वर वेरी वार्म, रेड एंड ऑरेंजेस के साथ हमने ज़्यादा काम किया, और ट्रेडिशनल काम था बहुत ज़्यादा। I really enjoyed today. The fashion show was really nice. One of my friends, Diva by Sana Rashid, was performing there, and we saw really different collections of different designers, and it was really interesting to see different designers come all together under one roof. रंगारंग फैशन शो में पाकिस्तानी कम्युनिटी के कारोबारी और समाजी और सियासी अफराद ने शिरकत की। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।